हेलो। चलिए शुरू करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द registers, combination of resistors basically, and in that one we tried understanding the resistors in series. We calculated the how to find the equivalent resistors when we have two resistors connected in series, when we have three resistors connected in series, and maybe in general we have more number of resistors connected in series. Okay, we tried understanding that. Also we tried understanding the resistors in parallel. We tried finding the equivalent resistors when two or more than two resistors are connected in parallel. So how to find the equivalent resistance, ये सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। साथ ही साथ वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एंड one important aspect, that is the Wheatstone bridge, that also we covered in the last class. This lecture I kept dedicatedly on doing the problems where we will be discussing a lot of questions based on the series circuit, based on the parallel circuit. There will be mixed series and parallel circuits where we have to find the equivalent resistance, we have to find the do the calculation, power dissipation challenges, and tricky junction questions that in the boards exam they ask. Very favorite topic, I told now. This is one of the very important topic. That's why I dedicated one complete lecture where we will be doing a lot of problems, what all questions, what all different types of questions that can come, that all questions we'll try to do. Okay, so let's not waste our time. I prepared all the question. Let's start doing the question. Okay, so here's your first question. Okay, be prepared, be ready, and I guess I'm having a total of 12 questions with me. Okay, same rule. You will try the question first of all by yourself. Pause the video, try it by yourself. अगर आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है then you proceed. ठीक है, I'll tell you the answers. ठीक है, कर लिया, कर लिया, अगर कर लिया then I'm gonna start. Okay, see, question is given. पहले मैं अच्छा, लास्ट क्लास में जो बात करती थी, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसमें जो जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आर इक्विवेलेंट का, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट जो हम फाइंड करते हैं बेसिकली वो 1/R इक्विवेलेंट होता है, विच इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, whenever I am connecting the resistors in parallel, so equivalent resistors जो होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम निकल के आता है, बताया था लास्ट क्लास में। एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी मोर फ्रॉम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। जितना एक रेजिस्टर का जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी एब्सोल्युटली मोर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीजें अगर मैं ध्यान में रखूं, सो आई कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। सी फ्रॉम हियर, let's say the question, what is the question saying? How can three resistors each, देखो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पहले तो देख ले, तीन रेजिस्टर्स हैं, each of resistance 3 ohm, value of resistance is given, be connected to give a total resistance of 9 ohm। ठीक है, 9 ohm। ठीक है, अच्छा, I'll tell you all the scenario। एक्चुअली अगर तीन रजिस्टर्स है हमारे पास, so there are the four situation or the four different ways I can connect those resistors। ठीक है, देखो पहला क्या होगा, या तो मैं all the resistors I connect in series। ठीक है, all of them the values are also given, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm and 3 ohm। okay, what is the second? अच्छा, in this scenario I made one extra, this is extra। okay, there only three registers are there, so in this case my R equivalent will be, since all are connected in series, okay, so in that case my R equivalent will be 9 ohm। so first answer is correct, first answer done। I have to connect all the resistors in series combination। ठीक है, second one, I want 1 ohm, which seems to be absolutely the least one, so let us connect them in the parallel combination। okay, this is my one resistor, this is my another resistor, and this is my another resistor। okay,
all the values are given as 3, 3 and 3 ohm. Okay, so if I try finding the R equivalent here, so it will be 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, which is nothing but 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, which is equals to 1 by R equivalent. Further solving it, I get 1 by R equivalent equals to 3 by 3, so which is equals to 1. Okay, so from here, uh, 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 so from here I got R equivalent equals to 1 ohm. Okay, so to get 1 ohm, I have to connect all the resistors in parallel. ठीक है, नाउ द थर्ड केस, हाउ टू कनेक्ट. अच्छा, अभी अपने पास दो सिचुएशन है जैसे आई कैन कनेक्ट इट. फर्स्ट, आई कैन टेक वन रजिस्टर हियर एंड अदर टू आई कैन कनेक्ट इन पैरेलल. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. Okay, or else I connect two of them in resistors and another one I keep on parallel. This is also one possibility. Acha, let us try finding out what is the output here. This is 3, this is 3, this is 3. Okay, acha, now I'll tell you from here only, step by step, small solutions from here only, step by step we try to change the circuit. ठीक है, देखो कैसे करते हैं. यहाँ पे I can redraw it. How? This remains 3. इसको I try to solve and try to get it into the series. I try to get everything into the series combination क्योंकि series में add करना आसान होता है. We can directly add and find the R equivalent. ठीक है. So when I try finding this, एक formula बताया था, अगर parallel combination में दो resistors रहे तो I can directly find R1 R2 divided by R1 plus R2. I can use this formula, remember? ठीक है. So here R equivalent I can directly get as R1 R2 is 3 into 3 divided by 3 plus 3. ठीक है. So I get from here 9 by this is 3 no, wait, this is 3 plus 3. ठीक है. So this is 6. Okay, when I find it, it will be 1.5. Okay, so what I got here, I got one more resistor whose value is 1.5 now. Acha, this 1.5 is the R equivalent of this combination. Okay, now this is easy now. These two are in parallel combination now that I can solve very easily. I can just add 3 plus 1.5. I got 4.5 ohm. Got it? So this is the answer. This is how we have to arrange the resistors for the third case. Let's see the fourth case. How to get the 2 ohm. ठीक है, तो एक ही हमारे पास सिचुएशन अभी बच रहा है कि इसको सीरीज में डाल दिया, दूसरे को भी सीरीज में डाल दिया, एंड अनदर वन आई पुट इन द पैरेलल. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई रीड्रॉइंग इट. This is 3, this is 3 and this is 3. Okay, now when I redraw it, I can write this is 3 plus 3 6 because both are in series combination, and this is again 3 only. Okay, now when I try solving this one, okay, so R equivalent from here will be 6 into 3. I'm doing directly. Okay, remember the formula. R equivalent of two resistors will be R1 R2 divided by R1 plus R2. Okay, so 6 into 3 divided by 6 plus 3, which is equals to 18 divided by 6 plus 3 is 9, which is 2 ohm. So for the fourth scenario, for to get the 2 ohm, I have to connect the resistors in this way. Two resistors in series and one in parallel. ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन. जस्ट चेक इट. नहीं समझ में आया, गो बैक टू द सॉल्यूशन अगेन. यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड चेक इट अगेन. ठीक है. अगर क्लियर हुआ देन वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. Let us go to the second question. This one also you try doing by yourself, then I'll solve it. Okay, do it. Pause the video, try to do it. Done? Okay, I'm doing now. It is saying to calculate the total resistance and reading in the ammeter. अच्छा, रीडिंग इन द एमीटर की बात तो हम बाद में करते हैं. पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितने आने वाला है. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी क्लियरली एक वैल्यू यहाँ से आने वाला है एंड अनदर वन फ्रॉम हियर.
ठीक है। अच्छा, एंड इन दोनों को मिला के आई विल गेट द वैल्यू इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। Okay, so let's try solving this one first. See, clearly there is a R1 resistance here and R2 resistance here. Okay, also the values are given. The first R1 value is given as 10 ohm and another one is given as 40 ohm. So when I try finding out, acha, there are two resistors here, so I can find R equivalent directly, which will be equals to 10 into 40 divided by 10 plus 40, right? So this will be 40 plus 10, sorry, 400, no? 400 divided by 50, which is equals to 80. So here what I got, it is 80 ohm. Okay, this is total of R equivalent I'm getting as 80 ohm. ठीक है। अच्छा, let us try solving this one now. So I can write R by 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So here I got 1 by 30 plus 1 by 20 plus 1 by 60. Clear? This is equals to 1 by R equivalent. When I try solving this, so I'll get the LCM as 62 plus 3 plus 1, 6 by 60, which is equals to 1 by 10, which is 1 by R equivalent. So यहाँ से हमारे पास जो R equivalent का वैल्यू आता है is equals to 10 ओम। तो इसको सॉल्व करने पे, नीचे वाले को सॉल्व करने पे मेरे पास आया 10 ओम। अच्छा, मैं इस चीज को फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। सी हियर, यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से लगा हुआ है। हियर आई गॉट हाउ मच, सी 80 ओम, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आया 80 ओम आया, और यहाँ पे जो हमारे पास आया दैट आई गॉट एज 10 ओम, यू नो 10 ओम, 10 ओम। और यहाँ पे लगा हुआ है मेरा एमीटर। अच्छा, बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू नाउ। ठीक है, सो ना लेट्स ट्राई फाइंडिंग आउट। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। सो यहाँ से R इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आई कैन क्लियरली सी इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, R1 इंटू R2 विच इज 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, विच इज 80 प्लस 10। Here I got 80 into 10 as 800 divided by 80 plus 10, 90. ठीक है, so here I got as 80 by 9 R equivalent. Okay, now using the now using Ohm's law. According to Ohm's law, what I can say, uh, here we know that V is equals to IR. अच्छा, ये जो है एमीटर है जहाँ पे करंट का वैल्यू शो होगा। ठीक है, सो इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट दैट द रीडिंग एमीटर विल बी शोइंग। ठीक है, सो व्हाट इज माय टोटल वोल्टेज इन द सर्किट, सी हियर आल्सो आई विल शो यू 12 वोल्ट। ठीक है, दिस इज 12 वोल्ट। So while solving this, I can put V is 12 volt. I don't know. R the value I got as 80 by 9. Okay. So from here I can write as V by R, which is 12 divided by 80 by 9. So this is 12 into 9 by 80, which is equals to how much? 4 3s are 12. Let's cut it down. 4 3s are 12. 4 2s are 20. 18 by 20 somewhat. You check the solution once. I guess it must be 80 by 20. You solve this one, you will get some value ampere. This much ampere of current must be shown there. Okay, the ammeter must be showing this much of current. Let me check it once again. We found the 80 here, 80 and 30 20 60 32 3 6 60 by 6, 10 ohm here, so 10, 80, 80, 10 by 80, 800 and plus 190, clear, 80 by 9, yeah. So you'll get this value of ammeter. So your ammeter will be showing this much value, 18 by 20. You find that some decimal it will come, that much ampere of current it will show. Okay, this is your answer for second question. Check it if it is clear. Check it, check it, check it. Okay, let us go to question number 3 now. This is your question. You try it, then we'll see the solution. Okay, try करो, try करो.
अगर कर लिया पॉज करो, ट्राई करो, अगर कर लिया आई टेल यू इसका आंसर जो है डी करके आएगा विच इज 25 आर बाय आर डैश का वैल्यू निकालना। कर लिया ट्राई, देन आई एम गोना डू इट। सी इट इज सेइंग द अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अभी देखो ना उसका कोई विड्थ चेंज कर रहा है ना वॉल्यूम थिकनेस चेंज कर रहा है, बट लेंथ चेंज कर रहा है। तो आई कैन अप्रोक्सीमेटली से दैट कि जो नया रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, ठीक है, दैट विल बी आर बाय 5। ठीक है, 5 रजिस्टर आर को 5 पार्ट्स में कट कर दिया, तो ईच रजिस्टर्स वैल्यू विल बी आर बाय 5। ठीक है, सो इनिशियली द रेजिस्टेंस का वैल्यू वाज आर। नाउ व्हेन आई कनेक्टेड ऑल ऑफ देम इन पैरेलल, ठीक है, सो देन माय रेजिस्टेंस बिकम, व्हेन connected in parallel the resistance of the equivalent resistance become R dash. Now let us try to find out the 1 by R dash. I can write it as 1 by R by 5 plus 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 1 by R by 5. ठीक, I can write it as 5 by R plus 5 by R. ओके, दिस इज 1 बाय आर डैश। तो यहाँ से अगर हम आर डैश फाइंड करने की कोशिश करें, देन इट विल बी 5 टाइम्स 5 बाय आर विच इज 25, सो आर डैश विल बी आर डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम हियर इफ आई ट्राई टू फाइंड आर बाय आर डैश इट विल बी आर डैश, सो इट विल बी आर, और आर डैश का वैल्यू कितना आया, आर बाय 25। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी 25 आर बाय आर। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, this gets cancelled here, so I got the value as 25, so r by r dash का वैल्यू कितना आ रहा है, 25। ठीक है, check it अगर कर लिया, if not then go to the video again, try to do it। okay, I am quickly moving to the next question which is question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग और इजी भी है एक्चुअली, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग है तो खतरनाक होगा। ठीक है, ट्राई करो। ओके, हाउ मेनी रेजिस्टर्स, क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी 160 ओम, एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज 160 ओम, हाउ मेनी दोज रेजिस्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल that is required to carry 5 ohm of current in a wire of voltage how much, 220 volt। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R का वैल्यू वी नो दैट V बाय I होगा, V का वैल्यू 220 दिया हुआ है और A का वैल्यू भी दिया हुआ है विच इज 5, ऑल आर गिवन इन द SI यूनिट, सो मेरे को उसका प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन आई कट इट डाउन सो आई गॉट 5 4 द 20 4 2 20 44, तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट मस्ट कम आउट टू बी 44 ओम। तो नाउ द क्वेश्चन चेंजेस टू, देखो 160 ओम रेजिस्टर का कितना 160 ओम रेजिस्टेंस का कितना रजिस्टर, व्हाट आई एम मिसिंग, ओके इजी, 160 ओम एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, तो ऐसा कितना रेजिस्टर आई हैव टू ऐड इन ऑर्डर टू गेट आर इक्विवेलेंट एज 44 ओम। अच्छा, मान लेते हैं कि वी हैव एन अमाउंट ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, तो आई कैन राइट 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन, टोटल नंबर ऑफ एन डिवाइडेड बाय हाउ मच, 1676 ना, 176। It is quite easy from here to find the value of n। R equivalent का वैल्यू कितना आ रहा है, 44, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पता है विच इज एंड डिवाइडेड बाय 176, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी कम आउट टू बी 176 डिवाइडेड बाय 44, 4 4 द 16 4, आंसर विल कम आउट टू बी 4। ठीक है, so we need 4 registers that must be connected in parallel to get the equivalent resistance of 44 ohm। ठीक है, चेक कर लो, दिस वाज इजी ना, दिस वाज इजी ना, देख लो एक बार और। ठीक है, एंड देन आई एम क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के प्रॉब्लम, सर्किट डायग्राम। ठीक है, देख लो, अगर आई होप द इमेज इज क्लियर, आई होप या इट्स क्लियर। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है
Find the equivalent resistance in this solution in this from P to Q. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट ये रहता है कि वी ट्राई टू रीड्रॉ द सर्किट. ठीक है, देन द थिंग्स बिकम इजी फॉर मी. देखो फिर से रीड्रॉ करते हैं. दिस इज 3, इजी. ऊपर वाले में आई एड बोथ ऑफ देम. सी, फ्रॉम हियर इट इज गोइंग वन हियर एंड वन हियर, तो यहां से तो पैरेलल है, तो यहां से मैं भी ले लिया, एक ऊपर एक नीचे. ठीक है, नीचे वाले में ये 5 ओम है, मैं वैल्यू डाल देता हूँ. दिस इज 5, ये 3 है हमारा, और ऊपर वाला अभी मैं रह देता हूँ. ठीक है, ये फिर वापस आ गया. देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर ये कितना, 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, ये वाला जो, इफ सी दिस वायर, ये एक ही पाथ में, ये गोइंग हियर, यही पाथ यहाँ तक गया, फिर ये पाथ यहाँ तक आ गया. ठीक है, सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब कि इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं. 10 ओम प्लस 10, सो कितना आ गया यहाँ पे इसका वैल्यू, 20. ठीक है, अब इन दोनों को देखो, दे टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. ये हमारा फिर से 3, एंड इस रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट हम निकालने वाले हैं अभी, एंड देन दिस इज 2. आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 रेजिस्टर है. आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली आई कैन फाउंड एज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 into R2 ना, R1 into R2 divided by R1 plus R2. R1 into R2 is 25 is 100 divided by R1 plus 25, इसका वैल्यू हो जाएगा 4. सो ये जो वैल्यू है that come out to be 4. अभी देख लो, now things become absolutely easy. ये and ये all are in series combination. ठीक है, so my answer will be R equivalent कितना आ रहा, 4 plus 3 7 plus 2 9, 9 ohm is the answer. Easy easy easy, check करो, quite easy. ठीक है, then I'm quickly moving to the question number 6. Okay, this is question number 6. Try. वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है. एक सेकंड, एक सेकंड, बस आ गया. आजा भाई, ऐसे मत कर. हाँ, ठीक है. We have to find the resistance, the value of resistance between point A and point B. Try करो, try करो. कर लिया, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, then I'm starting to do it. ठीक है, स्टार्ट करें. Okay, now I have to start. See which points are given, that is important. A, B, C, D बहुत सारे points दिए हुए हैं, लेकिन I have to find the equivalent resistance between point A and point B. अच्छा, let's try to redraw it. पहले देखते हैं, सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ से एक वायर जो है इधर की तरफ जा रहा है, और एक वायर इधर की तरफ जा रहा है. ठीक है, जो कि बी में कनेक्ट हो जा रहा है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज पॉइंट ए. एक पॉइंट जो है, जो इधर की तरफ 3 ओम कनेक्टेड है, एंड एंड इट इज गोइंग गोइंग बैक टू बी. ठीक है, अनदर वन फ्रॉम हियर ओनली, अनदर वन, अनदर वायर, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. देखो ये वायर यहाँ इधर, हियर इट इज गोइंग, पहला रजिस्टर का वैल्यू जो है 3 है, अनदर वन इज 3. ओके, और ये वापस यहाँ पे कनेक्ट हो गया. दिस इज 3. अच्छा, इफ यू ट्राई सीइंग दिस पार्ट, ये जो ये वाला पार्ट है, दिस इज सीरीज, क्योंकि यहाँ जा रहा है, देयर इज ओनली वन सर्किट फॉर द करंट टू फ्लो. तो यहाँ यहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम हियर एंड हियर. तो इन तीनों को ही हम मिला के एक चीज हम लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3. तो इन तीनों को मैं हटा रहा हूँ, एंड आई कैन इक्विवेलेंट रजिस्टर आई कैन फाइंड एज, आई कैन जस्ट सिंपली राइट एज 3 प्लस 3 प्लस 3. सो ये हमारा 9 आ गया, और दिस इज गिवन एज 3. क्वेश्चन इजी, इजी नाउ. 2 रजिस्टर आ गए, इसको पहले, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. So my R equivalent will be 3 into 9 divided by 3 plus 9. सॉल्व कर लो. 9 3 is 27, 9 plus 3 12. जो भी आंसर आएगा उतना ओम आंसर. ठीक है, क्लियर, इजी. सर्किट देखना समझना आना चाहिए. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का. ठीक है, इसके बेस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं और भी सारी चीजें करवा देता हूँ. ठीक है, बाकी देयर नो लिमिट ऑफ द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतनी ही क्वेश्चन आते जाएंगे. सो देयर नो लिमिट इन दैट. ठीक है, now let's go for this question. Okay, question number 7. Try करो, try करो, just 1 second, I'll be back. Question number 7 try करो.
ओके, ट्राई कर लिया? Shall we do it? Okay. Now, let me check. Is the recording everything fine? Yeah, all going well. Okay. Now see, in this question also, one thing to remember or one thing to important which is to be noticed, we have to find the equivalent resistance between point X and Y. मतलब यहाँ और यहाँ इसके बीच का ही निकालना है, ये मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है? आई डोंट नीड दिस, ठीक है? सो फ्रॉम हियर एंड एक्स और वाई के बीच में इजीली दिख रहा है कि ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, दोनों का विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वहां से आर इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, 100 डिवाइडेड बाई 20, 5 ओम। इजी आंसर आ गया। दिस क्वेश्चंस आर देयर जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। यहाँ पे अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखता, दे माइट एंड अप एडिंग 5 और 5 ऑल्सो, तो उनका आंसर क्या आता पता है? उनका आंसर आता 5 प्लस 5 15, उनका आंसर 15 ओम आ जाता, और आंसर में एक ऑप्शन में 15 ओम का भी ऑप्शन दिया रहता। यू माइट हैव एंडिंग अप राइटिंग द रॉन्ग आंसर, बट एक्चुअली फाइंड करना था एक्स और वाई के ही बीच में, ठीक है? सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू माइंड, okay, that you have to mind. Okay, now this is one of the very simplest question जो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, that you can try by yourself. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, एक को पैरेलल में डालना है, एक को सीरीज में डालना है, यू ट्राई बाय योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स, दिस एंड दिस। हाईएस्ट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, इसको सीरीज में डाल दो, सारे को सीरीज में डालोगे तो ये सारा ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, जो भी वैल्यू आएगा दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है? सो जब लोएस्ट लाना है तो आई हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल, ठीक है? इसको पैरेलल में डाल दो, जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू विल कम आउट टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 1/r इक्विवेलेंट करके जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही था टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट value of resistance by adding some different resistance, then I have to add them in the parallel, और जब हाईएस्ट निकालना है देन आई हैव टू गो इन द सीरीज, ठीक है? इजी है, कर सकते हो इजीली। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ दैट आई हैव डन ऑलरेडी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, सो दैट यू कैन ट्राई डूइंग बाय योरसेल्फ, इजी एक्चुअली। हाउ डू यू कनेक्ट द रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है? 3 नंबर ध्यान दो, 3 रेजिस्टर है 6 ओम का ईच, सो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल कम आउट टू बी 9 ओम एंड 2 ओम। कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते? अच्छा, अगर सारे को सीरीज में डाल दिया 3 ओम तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18, तो 18 चाहिए ना हमें, पैरेलल में सबको डाल दो तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सो 3/6 2 ओम। तो अगर पैरेलल में डाल दो तो देखो ये आंसर तो आ गया, ये देखो मैं क्या बोला, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सो बेसिकली दिस इज कम आउट टू बी 3/6, 1/2 है, तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है 2 आ गया। तो अगर तीनों को पैरेलल में डाले तब तो 2 आ जाएगा। 9 ओम कैसे लाएंगे वो अपना सोचो, तुम देखो, ट्राई करो, इजी है, इजी है, अलग अलग तरीके से उसको फिट करने की कोशिश करो। 3 रजिस्टर है, मैंने बताया ना, अगर 3 रजिस्टर है तो वी हैव 4 वेज इन विच आई कैन कनेक्ट दैट। पहला तो या तो सबको जो है सीरीज में डाल दो, या तो सबको पैरेलल में डाल दो, ठीक है? ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा तीसरा क्या कर सकते हैं कि 2 को सीरीज में डाल दो, ठीक है, और 1 को पैरेलल में डाल दो, 3 हो गया। या फिर 1 को सीरीज में डाल दो और 2 को पैरेलल में डाल दो, ठीक है? सो ट्राई ऑल ऑफ दिस, ओनली 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल हियर, सो ट्राई ऑल दिस 4 कॉम्बिनेशन और देखो कि 9 ओम किस में आ रहा है करके, ठीक है? क्लियर है? क्लियर? Okay, if it is clear, then I'm quickly moving to question number 10, which is also very easy, very easy. Okay, questions ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे इसके, ठीक है? बस सर्किट समझ में आनी चाहिए, कैसे उसको डील करना है, द स्टेप्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा, ये 2 ओम 2 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, एंड दिस इज 2 ओम। Okay, the key is closed using Ohm's law determine the potential difference across the 3 ohm. अच्छा अच्छा अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। Register in the circuit shown in the following diagram when the key is closed. देखो ये पूरा एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। Here I am given with the
वोल्टेज, ये तीनों रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सारा चीज लगा हुआ है, मेरे को करंट नहीं पता है। सो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू नोटिस, इन सारे में, in all of them they are connected in series। अच्छा, remember that class of series combination, मैंने बताया था कि when the components, all the resistors are connected in series, then current remain constant through all the resistors, through all the resistors। remember कि अगर all the resistors, if they are connected in series, then the current through all of them will remain the same। ठीक है, तो करंट यहाँ पे सेम रहने वाला। तो हम क्या करते हैं, व्हाट्स माय आइडिया, कि हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इन तीनों को मिला के हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और वहां से हम करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्लियरली दिख रहा है, 2 + 3 + 10 ऐड करना है बस, सीरीज में तीनों है, तो 3 + 2 5 +1 6। तो टोटल आर का जो वैल्यू है दिस इज 6 ओम आ गया मेरे पास, और वी का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ विच इज द 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आई निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, according to Ohm's law, we know that V is equals to I R। So यहाँ से I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V by R equals to I। V हमारा 2 वोल्ट है और R हमारा 6 वोल्ट है, तो I कितना आ गया, सो I come out to be 1/3 एम्पियर। ठीक है, जो भी वैल्यू, वी कीप इट लाइक दैट। ओके, नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक और चीज मैं जो बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में across the resistors the current remains the same but voltage varies। जाके देख लो, आई गेस हमारा लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर, लेक्चर 6 ओनली आई डिड, कि वोल्टेज जो है वेरी करता है, इसमें वोल्टेज V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा। ठीक है, बट करंट रिमेन सेम अगेन। अच्छा, 3 ओम जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो हमें चेक करना है। ठीक है, सो अगेन यूजिंग द V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V हमें फाइंड करना है, I का वैल्यू वी नो दैट 1/3 है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू इसको फाइंड करना है 3। आ गया 1 वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर, 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इज 1 वोल्ट। ठीक है, क्या करा, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाला, वहां से जो है मैंने करंट का वैल्यू निकाला। ठीक है, फिर से मैंने एक बार और ओम्स लॉ लगाया, एंड देन फ्रॉम देयर आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इजी था। ठीक है, टेल मी इफ इट इज क्लियर। नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है उसमें, देख लो सारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है बच्चे थक जाते हैं करते करते क्वेश्चन, तो बीच में मैं कुछ इजी क्वेश्चंस भी डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करने का बताओ, क्या करने का, क्वेश्चंस अलग अलग है लेकिन सिचुएशन कुछ ज्यादा, दिस नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन। आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आई कैन सी क्लियरली दैट ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ से देखो 3 पाथ है, 1 2 3, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल दे, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैं कर देता हूँ। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10, 10 5 प्लस 2 प्लस 1, 11/10। आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट का ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जो हमारा आ जाएगा 10/11, ये आ गया, पहला आ गया आंसर। टोटल करंट कितना है बट, ठीक है, तो करंट का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V है हमारे पास 6, I का वैल्यू पता नहीं मेरे को, R जो है 10/11 है, तो यहाँ से I जो है कितना आ जाएगा, 11 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, जो भी सॉल्व कर लो आ जाएगा, दैट इज योर करंट का वैल्यू। ठीक है, हमसे सॉल्व ना करवाओ भैया, कुछ काम खुद से भी कर ले। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज मैं बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज वेरी करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट वेरी करता है। तो यहाँ पे क्या करंट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों सिचुएशन में करंट वेरी करेगा। ठीक है, मैं एक बता दूंगा, दो तुम करोगे। ठीक है, फिर से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ लगाना है फिर से। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर लगाना है, या फिर I इक्वल टू V/R लगाना। V का वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। तो 6 वोल्ट है,
किसके पर निकालना है, 2 का निकालना है? ठीक है, मैं 2 का निकाल देता है। 2, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/2, 3 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ 6 की जगह पे 5 रख दो, तो 5/2 इसके अराउंड क्या आ जाएगा, 5, नो 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 नो, 6/5 ना, ये v का वैल्यू 6, r का वैल्यू 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/10। क्लियर? कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ये v इक्वल टू आई आर लगा रहा हूँ। ठीक है, वी नो दैट कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहां पे the voltage remains constant but the current changes, so that what is the different currents across the different resistors that we are trying to find out. ठीक है, so I can find out directly I is equals to v by r. V का value is constant which is 6 volt, that is very clear, and keep on putting the value of the resistors and I'll get the answer. ठीक है, आ गया। कर ले भैया, थोड़ा कभी दिमाग लगा ले, कर ले क्वेश्चन कर ले, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, now we have successfully completed 11 questions. We are on the last question, which is question number 12 of our session, and then we can wind it up. छुट्टी उसके बाद भैया, छुट्टी। ठीक है, चलो करें। ओके, now the following questions are source based, case based question। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो ध्यान दीजिए। पर ध्यान, ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, इट इज वेरी इजी, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखने का। विल डू वन बाय वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, ये पॉइंट ए है और ये बी है, उसके बीच सारा रेजिस्टर सीरीज में दिया हुआ है। एकदम मुंह जबानी इसका आंसर आ जाएगा, 4 + 6 + 16, 26 आ गया। 26 ओम इसका आंसर। रेजिस्टेंस का वैल्यू रेजिस्टर सीरीज में जोड़ा हुआ है। सो आई हैव टू जस्ट फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट व्हिच इज R1 + R2 + R3 व्हिच इज 4 + 6 + 16। आ गया आंसर 26 ओम। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। देखो, बी और सी के बीच में भैया जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, which is R1 into R2 divided by R1 plus R2। फॉर्मूला याद रखने का, नहीं तो दिक्कत होंगी। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, 8 into 8 divided by 8 plus 8, 64 divided by 16 which is 4। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया, 4 ओम। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। अच्छा, इसका वैल्यू जो आ गया अपने पास विच इज 26, और इसका वैल्यू जो है आ गया 4, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, टोटल रजिस्टर्स अभी कितना है, बेसिकली इसका टोटल मिला के आया 26 और ये टोटल का मिला के आया 4। तो बेसिकली दिस एंड दिस इज नाउ इन सीरीज ना, तो ऐड कर दो। तो टोटल जो मेरे पास इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट इज कम आउट टू बी 26 + 4। ठीक है, 26 + 4 ओम विच इज 30 ओम। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, तो यहाँ से करंट निकाल लो यार, इजी हो गया। V इक्वल्स टू आई आर होता है, बार बार मैं लिख रहा हूँ ओम्स लॉ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड ना कि ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से I इज इक्वल्स टू आ गया V/R। V हमारा पास 6 है, थीटा हमारे पास होने का 30, तो यहाँ से अगर हम फाइंड कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1/5 आंसर आ गया। एम्पियर भी लिख दो क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो हमारा आंसर आ गया 1/5 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। इजी है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इजी है एकदम, चिल करने का। हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये क्लियर हुआ। ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द आवर दिस चैप्टर। नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम शायद बात करने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, 1-2 लेक्चर और लगेगा, एंड देन वी आर वाइंडिंग अप दिस चैप्टर। ये चैप्टर खत्म हो जाए एग्जैक्टली ऑन द लास्ट वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाने का, इस चैप्टर का सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, यू फाइंड दैट notes from there. After completing the theoretical aspects of this chapter, we will go to solving the all the previous year questions from this chapter. ठीक है, completely उसके शायद 2-3 lectures लगेंगे, 2-3 sessions I'll take, फिर I will solve completely A to Z। कोई भी क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, all questions I'll solve whichever came in the previous year। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है? आज का सेशन समझ में आया? नहीं समझ में आया, गो बैक टू द लेक्चर, ट्राई सॉल्विंग ऑल ऑफ देम बाय योरसेल्फ अगेन। नहीं समझ में आता है देन यू सी द सॉल्यूशन। अगर खुद से नहीं करोगे तो ऐसे ही अटके रहोगे फिर। ठीक है, तो करने का। ठीक है,
चलो इफ इट इज क्लियर, मिलते हैं फिर हम द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय।